سب سے پہلے تو ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور تھام کر دل سنیے. حیران کن بات ہے اور آپ سنیں گے تو سر دھنیں گے. اور آپ یقین کریں، یعنی میں آپ کو تفصیل سے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا. فروری کا یہ مہینہ تاریخ کا خونی مہینہ، ذرا غور سے سنیے گا. اسٹاک مارکیٹ میں بلڈ بات، 757 ارب کے نقصان سے سرمایہ کاروں میں بے چینی، بیرونی قرضوں واجبات کا حجم 138 ارب ڈالر سے تجاوز. اور اس کی جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں کہ اطلاع یہ ملی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی اسٹاک میں اپنی سرمایہ کاری نکالنی شروع کر دی ہے. لیکن اسٹاک مارکیٹ سے غریب کا کیا لینا دینا؟ غریب آدمی کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ غربت کی شرح جو ہے وہ 7% جو ہے اضافے کے ساتھ 28.9% تک پہنچ گئی ہے. جی ہاں، اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں پاکستان کا مجموعی سرکاری قرضہ جی ڈی پی کے 70% تک پہنچ چکا ہے، جبکہ مالی خسارہ 6% کی بلند ترین سطح پر ہے کہ جو تقریباً مکمل طور پر سود کی ادائیگیوں پر مشتمل ہے. قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہم قرضہ لیتے ہیں صرف قرضہ واپس کرنے کے لیے. نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. دوستو، پاکستان کا آرتھک سنکٹ گہراتا جا رہا ہے. شیئر بازار میں بھاری گراوٹ، مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی، خالی جیبیں اور ٹوٹی زندگیاں. جی ہاں دوستو، یہ کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا. اور کیا کیا کہا گیا ہے جانیں گے آگے اسی ویڈیو میں. تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں. اور ایسے ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیواد. جے ہند. خبر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے پاکستان سے. خبر یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں اچانک تنزلی، تاریخی بلندی کے بعد 12% گراوٹ، 33 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ انخلا. یہ اب ایک دن میں ہو رہا ہے، دو دن میں، تین دن میں، مطلب ایک دن میں 5,500 پوائنٹس جو ہے وہ انڈیکس نیچے جا رہا ہے. کمی آ رہی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر، تنزلی ہو رہی ہے. شاید پچھلے چند دن کے اندر 12,000 پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، نیچے چلی گئی ہے. اور اس کی بڑی جو وجہ ہیں اس میں ایک تو فورن انویسٹرز کی بھاری سیلنگ ہے. فورن انویسٹرز دڑا دڑ سیلنگ کر رہے ہیں. تقریباً غیر ملکی سرمایہ کاروں نے مسلسل شیئر بیچے ہیں. ایک ہفتے میں 27 ملین ڈالر کے تقریباً شیئرز جو ہیں وہ بیچ دیے گئے ہیں. مارکیٹ کی یہ سب سے بڑی وجہوں میں سے وجہ یہ ہے کہ جو فورن انویسٹر ہے وہ یہ پیسہ بیچ رہا ہے. لوکل انشورنس کمپنیاں اور دیگر مالیاتی اداروں نے بھی بھاری سیلنگ کی ہے، جس سے مارکیٹ میں دباؤ بڑھا ہے. رمضان کے آغاز سے ٹریڈنگ والیوم کم ہو گیا ہے، 22% کمی آئی ہے. اور دیگر عوامل میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو کر اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھاری دباؤ ڈال رہی ہیں. جو سیکٹرز جن میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، انرجی سیکٹر کے اندر نقصان ہوا ہے، بینکنگ سیکٹر کے اندر نقصان ہوا ہے، سیمنٹ اور آٹو اور پاور اور انرجی اور پاور کا جو سیکٹر ہے، اور ریفائنری سیکٹر میں سب سے زیادہ نقصان ہوئے ہیں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں. اب اس کے 2-3 پہلو. ایک پہلو تو جرنلز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یاد کیجئے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی تو اس وقت جو بابر صاحب تھے، اس وقت لیفٹنٹ جنرل، ابھی بھی ہیں وہ لیفٹنٹ جنرل، لیکن اس وقت وہ آئی ایس پی آر کو ہیڈ کر رہے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے نئی حکومت آئی ہے، جو انویسٹر ہیں ان کا کانفیڈنس آیا اور اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے. تو جب اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے تو ہمارے جرنلز کو بہت شوق ہے کہ وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. لیکن جب اسٹاک ایکسچینج نیچے جاتی ہے تو اس وقت جرنلز کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. مطلب اسٹاک ایکسچینج اوپر تو ان سے پوچھ کے جاتی ہے، جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتی ہے نا، اسٹاک ایکسچینج جب اوپر والی منزل پر تشریف لے کر جاتی ہے تو ہمارے جرنل سے پوچھ کے جاتی ہے. لیکن جب وہ اوپر سے نیچے اترتی ہے تو وہ پوچھ کر نہیں اترتی. نیچے سے اوپر جاتی ہے تو ہیل والے جوتے پہن کے جاتی ہے تاکہ ٹپ 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 کی آواز آئے اور جرنلز کو بھی پتا لگے اور سب کو پتا چلے کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر چڑھ گئی ہے، اوپر والی منزل پہ چڑھ گئی ہے. لیکن جب اوپر سے نیچے آتی ہے تو خفیہ قسم کے اس نے کوئی پلاسٹک کے یا کوئی ربر کے جوتے پہنے ہوتے ہیں، جس سے نہ ان کو پتا لگتا ہے نہ قوم کو پتا لگتا ہے کہ وہ کیسے نیچے اتر گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ وہ نیچے اتری کھڑی ہوتی ہے، بالکل نیچے جا پہنچتی ہے، تو پھر قوم کا پیسہ ڈوبتا ہے، بہت سارے انویسٹرز کا پیسہ ڈوبتا ہے، تو ان کو پتا چلتا ہے. یہ تو پہلی بات ہے. ذرا سنیے اس وقت بابر صاحب کیا کہتے تھے. میرے خیال میں جس دن نئی گورنمنٹ نے سوئرن کیا اس دن اسٹاک ایکسچینج بھی آپ کی
ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया, तो इन अ वे इट इज एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। सुन लिया आपने। अब एक तो इसकी जहत यह है, दूसरी जहत इसकी क्या है कि पाकिस्तान की तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है आलमी सतह के ऊपर। और ये पाकिस्तान के वजीर आज़म, इनका आप स्टेटमेंट चेक करें। ये कहते हैं जी जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे, मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत है, ये शहबाज शरीफ ने कहा। कर्जे कैसे खत्म होंगे? पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे आपने लिए हैं। आपके मुंह से तो लफ्ज कर्जा अच्छा लगता ही नहीं शहबाज शरीफ साहब। यानी जितना कर्जा आपने ले लिया उतना कर्जा तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इनकी हुकूमत आने तक लिया गया 70-75 सालों में, उतना कर्जा गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कल ही ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नए से नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया और वो कहते हैं जी हम कर्जे खत्म करेंगे सरमायाकारी लाने से। दर्जनों दौरे आपने गैर मुल्की किए हैं, 100 के करीब दौरे आपके रिपोर्ट हो गए ऑलमोस्ट। इतने मुल्कों में आप घूमे हैं, एक एक मुल्क में 3-3, 4-4 दफा आप गए हैं। कौन सी आप बराह रास्त सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए? पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया, आजादी सारे राय नहीं है, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे अमनो अमान नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और ये एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। तो जब तक ये चीजें चलेंगी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। जब आप बार बार ये कहते हैं कि इंडिया के साथ भी हम जंग करेंगे, हम इधर भी लड़ाई करेंगे, हम अफगानों के साथ भी लड़ेंगे, हम हालते जंग में हैं, हम दुनिया की जंग लड़ रही है, तो दुनिया क्यों पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगी? आपने तो पाकिस्तान के अंदर एक बिला वजह की जंग शुरू की हुई है जिससे पाकिस्तान काफी हद तक जान छुड़ा चुका था। अब नाज़रीन, ये एक और खबर है और ये खबर ये बता रही है कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की एकदम बहुत नीचे गिरी है और उसकी जो वजूहात सामने आ रही हैं कि इतला ये मिली है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी स्टॉक में अपनी सरमायाकारी निकालनी शुरू कर दी है। मजीद ये कि पाकिस्तान ने टोटल बैरूनी कर्जा 138 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस कर्जे को कौन उतारेगा? अब गैर मुल्की सरमायाकार जब आपके स्टॉक एक्सचेंज में से पैसा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या है कि आपका क्रेडिट बिल्कुल खत्म हो गया। लोग आप पे और आपके मुल्क पे भरोसा ही नहीं कर रहे, आपकी हुकूमत पे भरोसा ही नहीं कर रहे और लोग पैसा निकाल के पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं। और आप कर्जा रोल ओवर करने के लिए कभी 1 महीने का कभी 2 महीने का टाइम लेते हैं यूएई से 2 अरब डॉलर के लिए। ये नाजरीन पाकिस्तान की इन्होंने माशी सूरत हाल कर दी है। तो ये कैसे बराह रास्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, ये बात समझ से बाहर है। तो मईशत का जो इस वक्त बहरान है, हुकूमत बहुत अरसा पिछले कई सालों से ये दावे करती आई कि हमने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बना दिया है, हमने SIFC बना ली है और अब मुल्क में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आने को है। लेकिन हकीकत हमारे सामने है कि $1 भी पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर नहीं आया। तारीख की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फिर इसी तरह पाकिस्तान के जो कारोबारी अफराद हैं वो पाकिस्तान में अपना पैसा महफूज नहीं समझते और आप डेटा एदादो शुमार अगर उठाकर देखें तो यूएई में दीगर ममालिक में सबसे ज्यादा जो कंपनीज रजिस्टर हुई हैं पिछले 2 सालों में वो पाकिस्तानियों ने रजिस्टर कराई है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हुकूमत दावे कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर भी पैसा था, यहाँ का सरमायादार पाकिस्तान में अपना पैसा महफूज तस्वुर नहीं करता, वो भी उसको लेकर बाहर चला गया। अब इसकी बुनियादी वजूहात हम सब के इल्म में है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में बहुत हाई है। जब आपकी बिजली महंगी तरीन बिजली होगी तो आप किस तरह compete करेंगे बाकी competitors के साथ। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो भारत का मुआहदा हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, आपकी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, उसकी वैसे भी GSP प्लस अगले साल खत्म होगा, पाकिस्तान को फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एक प्रेफरेंशियल एक्सेस जो आपको मिला हुआ था अब उसमें वहां पर आपको compete करना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली हम उसके लिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं है और हमारी कॉस्ट ऑफ एनर्जी इतनी हाई है कि हम शायद compete ना कर पाए। फिर इसी तरह आपके और दीगर माशी एतबार से बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पॉवर्टी की, गुर्बत की शरह आप देखें तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से, कारोबार ना चलने की वजह से इस वक्त गुर्बत की शरह पाकिस्तान में खिते में सबसे ज्यादा है और जो एदादो शुमार हमें बताते हैं कि इस वक्त रफली 47% पाकिस्तान पॉवर्टी की शरह से नीचे गिर चुका है, यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है और लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। तो फिर आपको ऐसे मंजर देखने में मिलते हैं कि जहां पर आपको अपना नौजवान यूरोप के समुद्रों में डूबता हुआ नजर आता है, कश्तियां डूबती हुई नजर आती हैं और लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। आपसे टैलेंट यहाँ से जा रहा है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तारीख में ये एदादो शुमार की बातें हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता कि तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन पाकिस्तानियों की पाकिस्तान छोड़कर जाने की इन पिछले 2 सालों में हुई है। अब ये चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं, बेरोजगारी मौजूद है। अगर फिर आप एक दफा एदादो शुमार उठाकर देखें तो खिते में आप मुवाजना करें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में और फिर खतरनाक हद तक
बेरोजगारी की शरह नौजवानों में सबसे ज्यादा भी हमारे मुल्क में, तो ये कोई सूरत हाल अच्छी सूरत हाल नहीं है। धड़ाधड़ दौरे पे दौरा, वो दाने पे दाना था ना, ये दौरे पे दौरा। तो 35-40 दौरों से हासिल वसूल क्या हुआ मेरे भाई? गजा बोर्ड 20 में आ गए हम, और क्या चाहिए आपको? 41% कम हो गई है, सरमायाकारी 41% कम हो गई है। 112 MOU साइन किए आपने, कितने तोड़ चढ़े हैं कोई मुझे बताएं तो सही। और रोजगार हुकूमत खुद कह रही है कि हम सर क्विकली आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब वक्त की किल्लत है, ब्रेक से पहले मेरे पास रोजगार पैदा नहीं कर रही। पॉइंट आ गया आपका। इससे पहले बिलाल साहब के पास जॉब और आखिरी बात ज़र मुबादला में $600 मिलियन ये प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं, हालांकि चीन सर पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया बनता $600 मिलियन प्राइवेट बैंक से। मैं जानना चाह रहा हूँ बिलाल साहब के बारे। चॉइस साहब आप क्यों हंसे हैं? तो ये 41% जो हमारी FDI नीचे गई है और बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज बताया जा रहा है कि जी वो यहाँ से भाग रहे हैं, इसको हम किस तरह का इंडिकेटर लें? हालांकि हमारी तो पूरी दुनिया में बड़ी पजीराई हो रही है, इमेज तो हमारा बड़ा गजब का बन गया है ही नहीं पैसे। और हुकूमत को चूँकि जो इंस्टीट्यूशनल लोन नहीं मिलता, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है और चाइना है, सऊदी अरब है, UAE, अब वो भी थक गए हैं पैसे दे दे के, तो अब हम कमर्शियल लोन लेते हैं जो बहुत महंगा होता है, और इसकी अदायगी भी, जो इंस्टीट्यूशनल लोन है वो उसकी अदायगी 35 साल 40 साल लॉन्ग टर्म होती है। ये 6 महीने के लोन होते हैं, जैसे भी इन्होंने लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड से। बिल्कुल जी, है ना, बिल्कुल। वो भी बड़ा 6.25% पे लिया जी। तो ये जो है हम इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। अब ये है कि हुकूमत की और सारे जो IMF समेत जो है वो उसका जोर ये है कि हम आमदनी बढ़ाएं ताकि खसारा कम हो। लेकिन आमदनी तो मईशत का पहिया चलने से आती है ना, मईशत का पहिया तो बंद हो गया, कारखाने बंद हो रहे हैं, हर महीने कोई ना कोई खबर आती है कि ये कारखाना बंद हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स चले गए हैं मुल्क से। तो जब ये कंपनीज चली जाती है, बंद हो जाती है, जो थोड़ा बहुत टैक्स वो दे रहे होते वो भी नहीं देते। तो जो दौर है इस वक्त के टैक्स रेवेन्यू बढ़ाए, वो तो नाकाम है, और हमें नाकामी नज़र आती है। हर क्वार्टर में FBR का जो टारगेट होता है वो नहीं अचीव कर पाते, शॉर्टफॉल होता। 2018 में हम पाकिस्तानी जो थे वो तकरीबन 4 अंडे महीने के खा सकते थे औसतन। 2024-25 में हम 10 दिन में भी एक अंडा नहीं खा सकते। और पाकिस्तानियों ने हर चीज, मां सिवाय टमाटर के, हर चीज जो है वो कम खाना शुरू कर दी। न सिर्फ गोश्त और तेल और अंडे कम खाना शुरू कर दिए, जो कि चलो महंगाई बढ़ जाए तो वो चीज कम कर देते हैं, लेकिन चावल और गंदम भी कम खाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भूख का क्राइसिस है। ये हैं वो चैलेंजेस ख़वातीन और हज़रात, जिसको हमें बड़े गौर से देखना होगा, और उसके ऊपर अब वक्त नहीं है। We don't have the luxury of time. We'll have to act and act speedily. अगर वाकई हमने दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।